नमस्कार, हम टीवी भारत में स्वागत। केरल में पीएससी परीक्षा और कथित नियुक्ति अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कोच्चि के परवूर में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने पीएससी के कथित अनियमितताओं और नियुक्तियों के पश्चात के आरोप लगाए और प्रदर्शनकारियों के ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। वहीं राज्यपाल के पास पीएससी के से जुड़ी कई शिकायतें पहुंचने के दावा किया गया और मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। Yes, sir. Rahul Gandhi should see this because actually he was the one who said that when students are protesting, when the youth are protesting, the government should not react. But see what's happening in Kerala when the youths are protesting, the government is taking the action, the police is taking the action. So actually we are ready to face all these things. We are doing the politics by fighting all these things. So we know what will happen. That's a different matter. We are ready to take any challenge in Kerala because Kerala is the most literate state, you know. But the Gen Z in the Kerala, for the last 2 months, what the Gen Z in Kerala is doing, they are protesting in front of the secretariat. They are eating grass. They are eating mud. Everything they are doing. The worst they are doing, that poor people, that poor youngsters, actually their concern is very genuine. Because the PSC is sabotaging the appointments in Kerala. They are not doing the proper appointments here. You know what? The Jumbo Committee is administrating the PSC here. In no other state such a Jumbo Committee is there. The PSC chairman, he is getting some salary of around more than 4 lakhs. Even the Indian Prime Minister has the salary below 3 lakhs. Okay. And the Kerala Chief Minister, he is getting the salary around 2 lakhs. But the PSC chairman is getting salary above 4 lakhs and the 21 member panel is there. Almost all of them are getting salary beyond 3.5 lakhs. That's the situation here. And how the appointment in this PSC panel is happening. The PSC panel appointment is pure political appointments. The pure political appointment means the bribe starts from there. When they are getting appointment through this bribery, then what will they do in that positions? We all know. Obviously, they will also do bribery. The last day, I think that the governor, the Raj Bhavan received more than 100 complaints about the irregularities in the PSC examination. Only one of them is being properly inquired. We know about that planning commission irregularity happened. A leftist got the appointment there and the answers which he wrote, that was only evaluated. The rest of the people, they wrote the answers of the rest of the questions, but to appoint this particular person, the government, the authority decided to ignore the answers of the people who wrote the other questions other than this person. So it's that irregularity is being enquired properly in Kerala, and the rest of the मणिपुर के इम्फाल में होम कमिंग समारोह के दौरान केसीपी ताइबंगाबा के 47 कैडरों के हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया और कैडरों ने 20 अलग अलग हथियार पुलिस को सौंपे और मुख्यमंत्री ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील के बाद इसे अहम कदम माना जा रहा है और मणिपुर के पुलिस ने आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के सत्यापन और पुनर्वास की प्रक्रिया में सहयोग का भरोसा दिया और मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने अन्य उग्रवादी संगठनों से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर कानूनी प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण करने की अपील की।
and you have been welcomed them home. So any message to other groups also? The Honorable Chief Minister had urged the militant groups to surrender in his speech on the 12th of this month, and within 6 days this group has come up and surrendered. 45 cadres of KCP have surrendered with arms, and we urge more outfits and more cadres to come up and surrender and come in the mainstream and follow a normal life. Thank you. So any message to all those? We are taking action against extortion. Sir, such well. आज 18 अगस्त 2026 आज का दिन में जो हम लोग का केसीपी ताइबंगानबा ग्रुप, मैं केसीपी ताइबंगानबा, मेरा साथ मेरा अदर 46 कैडर्स के साथ आज स्टेट गवर्नमेंट का साथ और जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वो लोग के साथ आज होम कमिंग सेरेमनी, इस प्रोसेस का जो होम कमिंग सेरेमनी आज कर रहा है। दिल्ली में सीजेपी से जुड़े सौरभ दास ने प्रदर्शन मार्च की घटना और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर को रद्द करने की संभावना जताई है और केंद्र से संबंधित एफआईआर की सूची मांगी है। और सौरभ दास ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सूची उपलब्ध कराने को लेकर अब तक स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से किए गए पुराने आश्वासनों से पूरा करने की मांग की और आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाने की बात कही। Today's hearing, like I have said, at the last hearing, the Supreme Court had indicated that it wants to use its Article 142 complete justice powers to quash all the FIRs across the country against protesters in one go from the Supreme Court itself. We welcome that indication. Today, the Supreme Court again asked the Union government through its Solicitor General Tushar Mehta ji to give a list of FIRs that the Supreme Court can quash. The Union government was saying that there are hardened criminals, around 2,800 of them that were identified by the facial recognition technology. We want to proceed against them. The Supreme Court made it very clear that if 2,800 have to be proceeded against, you file a separate FIR and give us a separate list of those FIRs. But against the protesters, whatever FIRs are pending, give that list to us and we'll quash it. They asked it 3 times, but there was no commitment from the Union government side. It is highly, highly condemnable. It shows that the government is wanting to dishonor its commitments on July 25 that it gave to the young of this country. We will not tolerate this. The Cockroach Janata Party will convene a meeting of its National Working Committee and will decide on the next steps that have to be taken to get the government to honor the commitments that it has already made to the young of this nation on July 25th. But Kiren Rijiju said that nobody was seriously injured and there were many... So what did he want? Did he want serious injuries? Did he want the guns to be fired? Did he want any protesters to be killed? Is that what he is hinting at? I don't know what this means, ki there were no pellet guns, there were no guns used, there was no bullet fired. Why are you even asking, giving these statements? It does not arise in the first case because these are your own citizens, your own children. These people are exercising their fundamental right to protest. So how on earth are you even giving a statement that no bullets were fired? वो तो given ही है ना, मतलब इस देश में आप थोड़ी ना बुलेट चला सकते हो. वो तो फिर कल को ये भी बोल देंगे आके कि हम लोगों ने टैंक नहीं चलाया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो हम लोग क्या ताली बजाएंगे उनके लिए? तो ये सब बचकानी बातें, ये सब चलेगा नहीं. देश के युवा जग चुका है एंड उनको समझना चाहिए कि जो कमिटमेंट आपने दिया है, वो जो जबान दी है, उसको आप ऑनर करिए. महाराष्ट्र के हिंगोली में अपनी मांगों को लेकर चल रहा प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया है और अभिजीत डिपके के प्रशासन के आश्वासन का स्वागत किया और कहा है कि मांगों पर कार्रवाई होने के बाद प्रदर्शन समाप्त करने की फैसला लिया गया.
140 करोड़ अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत अपने गांव से की। क्या है जिला परिषद की हालात यहाँ की हिंगोली? यहाँ पर जो प्रिंसिपल आ रहे थे, दारू पीकर आ रहे थे, बच्चों के सामने दारू पीते थे और इसी क्लास में छोटी छोटी बच्चों के सामने दारू पीकर सो जाते थे। तो उसके लिए हमने कहा था अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। हम आज आंदोलन पर बैठे तो लेकिन अभी अभी पता चला है कि उस प्रिंसिपल को हटाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है इन गाँव वालों के लिए और मैं गाँव वालों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबने झुका दिया इन लोगों को और अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी और डिमांड है, 2 और टीचर चाहिए। जब तक वो 2 और टीचर का अपॉइंटमेंट आता नहीं है तब तक गांव वाले पीछे नहीं हटेंगे और गांव वालों के साथ मैं यहीं पर बैठा रहूंगा जब तक ये यहाँ बैठे रहेंगे। बहुत सारे जिला परिषद की स्कूल की हालत खराब है, बेंच नहीं है स्कूल में। आगे का प्लानिंग क्या है आपका और आंदोलन कैसा रहेगा? नहीं, आगे तो हम ये पूरा देश भर आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकारी स्कूलों में बेंचेस नहीं है वहाँ पर हम बोलेंगे कि पहले सबसे पहले बेंचेस दो, क्योंकि जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल्स काम करते हैं उनके बच्चे तो बेंचेस फ्री बैठते होंगे ना प्राइवेट स्कूल में। आपको जिम्मेदारी क्या दी थी? आपको जिम्मेदारी दी थी स्कूल अच्छे करने के लिए सरकारी। आपने क्या किया? आपने अच्छे आपने नहीं किए। आप अपने बच्चों को भेजते हो प्राइवेट स्कूलों में और आपके बच्चे को मिलती है डिजिटल क्लासरूम, बेंचेस मिलते हैं, आरओ का पानी मिलता है, लेकिन आपके पास जिन स्कूलों की जिम्मेदारी दी थी उन स्कूलों में ना पानी आता है, ना बेंचेस है, ना डिजिटल क्लासरूम है। तो आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो। तो आपको अपना काम ठीक करना पड़ेगा और अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फिर तो यही करना पड़ेगा कि आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना पड़ेगा। जब सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चले जाएंगे तब देखना अपने आप सारे स्कूल कैसे 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब इनके बच्चों की बात आएंगी ना तब इनको समझ में आएगा कि क्या झेलना पड़ता है। चेन्नई में बीजेपी नेता तरुण चुग और तिमी लिसाई सुंदरा राजन ने झारखंड छात्र विरोध प्रदर्शन समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने चेन्नई में बीजेपी नेताओं की बैठक और संगठन से जुड़े विषय पर भी बात की। तरुण चुग ने गुजरात बीजेपी और प्रभारी नियुक्ति किए जाने पर भी चर्चा हुई और इसके अलावा सीएम विजय के कार्यालय में जुड़े टेंडर विवाद और राजनगर गोलीकांड को लेकर दिए गए बयानों पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। दुर्भाग्य है कि जो लोग जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के आंदोलन को पॉलिटिकल हाईजैक करने का प्रयास करते रहे, वो राहुल गांधी का कुनबा, वो केजरीवाल का कुनबा झारखंड में इतने बड़े छात्र आंदोलन में गायब भी था और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ना छात्रों के हक में बोले, ना छात्रों के लिए सरकार को अपील की। कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा स्टैंड है जो स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है और निरंतर कार्य करने वाला दल है। 365 डेज भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब मिलकर पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं और यहाँ पर व्यक्ति नहीं, संगठन इंपॉर्टेंट है, विचार इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य पद्धति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हम पार्टी का विचार, पार्टी की राष्ट्रीय सोच, पार्टी का इतिहास, पार्टी के कैसे काम कर रही है, किन मुद्दों पर कर रही है, इसके लिए हम अपने कैडर को ट्रेन करते हैं और तमिलनाडु के अंदर सभी जिलाओं में ये प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आई है। जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अथाह प्रेम करती है और निश्चित रूप से जिस तरह तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, उनको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर कोई बदलाव दे सकता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। भोपाल में संत शिरो
मणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया गया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि यहां यात्रा संत रविदास की समानता और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी और यहां यात्रा प्रदेश के 55 जिलों में से होकर गांव-गांव और मंदिर तक पहुंचेगी। वही सागर में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत में मंदिर और पुस्तकालय निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है। गुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की समरसता संकल्प यात्रा उनकी 650वीं जयंती पे आरंभ है। 29 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और 20 फरवरी तक चलेगा। गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर रविदास जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। समरसता के संत जिन्होंने इस देश में सभी समाजों को जोड़ने का काम किया, उनकी 650वीं जयंती पर पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। आज यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हमारे दुष्यंत जी जो केंद्र से हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने आए, हमारे लाल सिंह जी, हमारे सभी मंत्रियों की उपस्थिति में ये आज कार्यक्रम कलश वंदन यात्रा का रखा गया। आज यहाँ से हम कुछ यहाँ से कलश हमारे जो वाहन हैं उन्हें हरी झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे 55 जिलों में ऐसे रथ जिले के हर गांव में जाएंगे, हर मंदिर तक जाएंगे। समरसता का ये अभियान जन जन तक पहुँचे, हर समाज तक पहुँचे। इस देश में सारे समाज मिलके हमारे संत रविदास जी महाराज की जो वाणी थी, जो उनका संदेश था, उसको हम हर समाज तक ले जाएं और इस देश में समरसता का जो अभियान हमारे विचारधारा हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम लोगों ने जो किया है उसे नीचे तक पहुंचाएं। इसके लिए आज ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ की जा रही है। सागर के लिए बड़ा दिन रहेगा आने वाले समय में और उज्जैन के लिए भी। सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से हमारा संत रविदास जी महाराज का मंदिर, वहाँ पे ग्रंथालय और एक बड़ा निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में आए, ऐसी अपेक्षा मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने की है। उज्जैन में भी मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि हम संत रविदास जी की स्मृति की यादों को पुनः ताज़ा करें। मध्य प्रदेश में वहाँ जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े, जहाँ जहाँ उनकी यादें हैं, उन्हें संजोने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। मौके पर समाजवादी छात्र सभा के अवधेश यादव और अक्षत पांडे और रोहित यादव और लखनऊ के विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष आदित्य पांडे समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाम रोहित यादव है। हमारी ये मांग है, जो लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। अभी आप देखें शिव कुमार तिवारी की कैसे हत्या हुई, सीतापुर में एक लड़की जो 11 दिनों से 11 तारीख को लापता हुई और 14 तारीख को उसकी लाश एक फंदे से लटकी मिली। और अभी जो वर्तमान में IPS हैं, उनकी माता जी की हत्या कैसे कर दी गई घर में जाकर। तो ये एक सवाल खड़ा करता है भैया। और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये सरकार को सोचना चाहिए कि अपराध बढ़ने का क्या कारण है। क्या शिक्षा में कमी है? क्या बेरोजगारी है? क्या जो बेरोजगार युवा हैं वो खाली बैठे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इस अपराध को कम किया जाए। और हम आज माननीय महोदय जी को, राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। इस वजह से जा रहे हैं कि जिस वजह से लगातार यूपी में अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसको कम किया जाए। ये सरकार कहती थी कि हम 0 टॉलरेंस ला रहे हैं, कहाँ है 0 टॉलरेंस देखिए। और दूसरा मुद्दा भैया हमारा ये है, UGC नेट में 3 पेपर, कॉमर्स, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, इसको इन्होंने री एग्जाम करा रहे हैं। दिल्ली के पूसा कैंपस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सप्तधारा ऑफ द शक्ति की शपथ दिलाई और कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के रोड मैप
पर चर्चा हुई। इस दौरान लखपति डीडी कार्यक्रम के विस्तार, किसानों के हित और कृषि क्षेत्र में मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान और लखपति डीडिया और कृषि निर्यातक और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आपको याद होगा युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद, अगर नहीं हो तो उसको एक बार याद करना। आपको पता है कि जब प्यास लगी जंगल में, पानी कहीं था नहीं, तो युधिष्ठिर ने एक भाई से कहा जरा पेड़ पे चढ़ के देख, कहीं आसपास पक्षी उड़ रहे हो, सरोवर के दर्शन होते हो, प्यास से कंठ सूख रहा है, प्राण निकल जाएंगे, पता करो पानी लाने की व्यवस्था की जा सके। चढ़ के देखा तो दूर कहीं पक्षी उड़ रहे थे जो आभास दे रहे थे कि वहां पानी जरूर होगा। छोटे भाई को कहा सबसे पहले सहदेव को जा पानी देख के आ, पानी लेके आ, इस दिशा में पानी है। सहदेव गए, पानी के पास पहुंचे, कंठ सूखा था, प्राण निकल रहे थे, तो तुरंत उन्होंने कहा पहले तो खुद पानी पी ले। जैसे ही हाथ डाले सरोवर में, तालाब में, तो अंदर से आवाज आई कि सहदेव पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अगर तुमने पानी पी लिया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। सहदेव ने कहा वैसे भी मरे जा रहे हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हैं। उठाया और पानी पी लिया, निर्जीव होके गिर पड़े। थोड़ी देर नहीं आए तो नकुल से कहा तुम जाओ। सहदेव आया नहीं, नकुल गए, उनने भी पानी पिया, वो भी प्राण पखेरु उड़ गए। भीम गए, अर्जुन गए, अंततः जब चारों नहीं आए तो युधिष्ठिर गए। पहले चारों भाई पड़े देखे, मन वेदना से, व्यथा से व्याकुल हो गया, लेकिन फिर सोचा कि मैं भी पानी तो पी लूं, फिर सोचूंगा। यक्ष की आवाज आई कि मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना अगर तुमने पानी पी लिया तो तुम्हारे भाइयों की तरह तुम्हारी हालत हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा बताओ सवाल क्या है? कई सवाल थे, उन सवालों को मैं नहीं जानता, केवल एक सवाल जिसका जवाब मुझे प्रेरणा देता है, वो ये था कि बताओ युधिष्ठिर दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा मनुष्य पैदा होता है, बच्चा होता है, खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है, कॉलेज स्कूल पढ़ने जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहिए हुम्बल टीवी भारत।